وزیر اعظم کا گوادر کے محنت کش ماہی گیروں کے جائز مطالبات کا نوٹس، ٹرالر سے غیر قانونی ماہی گیری کے خلاف سخت ایکشن لیں گے۔ اس معاملے پر وزیر اعلیٰ بلوچستان سے بھی بات کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ۔ وزیر اعظم عمران خان بلوچستان کے مسائل کا حل ترجیحی بنیادوں پر چاہتے ہیں، غیر قانونی ماہی گیری کے خلاف سخت ایکشن لینے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے جنوبی بلوچستان کے لیے ملکی تاریخ کا بڑا ترقیاتی پیکج دیا۔ پی ٹی آئی حکومت الیکشن کمیشن کو مضبوط بنانا چاہتی ہے۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین اور وزیر مملکت برائے اطلاع فروخ حبیب کی لاہور میں نیوز کانفرنس۔ سندھ میں مقامی حکومت کے نظام کی درستگی اور بااختیار بلدیاتی نظام چاہتے ہیں۔ صوبے کے تمام شہروں کو حقوق ملنے چاہئیں۔ سینٹ اور قومی اسمبلی سمیت ہر فورم پر آواز اٹھائی جائے گی۔ مسائل کے حل کے لیے سندھ حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ خیبر پختونخوا کے بعد اب اسلام آباد اور پنجاب میں بااختیار مقامی حکومتوں کا نظام دینے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا آل پارٹی اسٹیک ہولڈرز کانفرنس سے خطاب۔ ملکی سیاست میں شریف خاندان اور ان کے درباریوں کی کوئی جگہ نہیں۔ مریم اورنگزیب پروپیگنڈے کے بجائے اپنے لیڈرز کی کرپشن کا حساب دیں۔ شہباز شریف کا ہر منصوبہ کرپشن اور کک بیکس کے لیے تھا۔ عوام کو تحریک انصاف کی حکومت پر مکمل اعتماد ہے۔ معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کا مریم اورنگزیب کے بیان پر رد عمل۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں یونیورسل ہیلتھ کوریج کا دن، مقصد صحت سہولیات کی بلا تخصیص فراہمی کے بارے میں شعور اجاگر کرنا ہے۔ پاکستان 2023 تک یونیورسل ہیلتھ کوریج کے ہدف کو ممکن بنانے کے لیے پرعزم۔ عوام کے لیے صحت کارڈ کا اجراء اس سلسلے کی اہم کڑی۔ صحت کی معیاری سہولیات کی فراہمی کے لیے قومی صحت کارڈ کا دائرہ کار پورے ملک میں پھیلا دیا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کیبنٹ آور کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں سلما کوثر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔ Today we celebrate International Mountain Day on the theme of sustainable tourism. I'd like to highlight the great beauty and importance of our majestic mountains. But more importantly, I would like to highlight the need to support and empower communities who live on and around these mountains. One way of doing this is through ecotourism. Climate change is real, it is with us now, and we do need to mobilize the political will and the resources that it takes to combat climate change. UNDP stands behind the government of Pakistan in their efforts to combat climate change and also to address other environmental challenges and to become one of the world's leading countries for sustainable development. کون ہے آپ؟ تمہارا دادا سلیمان شاہ۔ حکمت جانے بغیر حکومت نہیں کی جاتی۔ ارطغرل نے کھیل کھیلا ہمارے ساتھ، وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ النجک اور ڈریگوس کو ہم ایک ایک کر کے ختم کر دیں گے۔ آج نہیں تو کل وہ جان جائے گا کہ میں کون ہوں، پھر وہ دشمنی نبھائے گا۔ یہ وقت ہے کہ پہاڑ کی طرح ارادوں پر ڈٹ جائیں ہم لوگ۔ ارطغرل کے کمزور پہلوؤں کو نشانہ بنانا ہمارا ہدف ہوگا۔ قلعے کو تباہ کرنے کی خواہش صرف النجک کی نہیں، ہلاکو خان کی بھی ہے۔ تمہارے بابا کا اصلی قاتل میں اسی وقت تمہاری جان لے لوں گا۔
वेलकम बैक नाज़रीन। खबरनामे का आगाज करते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवादर की मेहनत कश माहीगीरों के इंतहाई जायज़ मुतालबात का नोटिस लेते हुए गैर कानूनी तौर पर मछली पकड़ने वाले ट्रॉलरों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की यकीन दहानी कराई है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि वो इस मामले पर वज़ीर आला बलोचिस्तान से भी बात करेंगे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने स्टेट लाइफ को पॉलिसी होल्डर्स के खानदानों को 16 लाख रुपए अदा करने की हिदायत कर दी है। सदर ममलिकत ने वफाकी मोहतसिब के फैसलों के खिलाफ स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की 4 अलग अलग अपीलें मुस्तरद कर दी हैं। वफाकी मोहतसिब ने वफात पाने वाले लाइफ पॉलिसी होल्डर्स के खानदानों को इंश्योरेंस की पूरी रकम अदा करने का हुक्म दिया था, जिस पर स्टेट लाइफ ने पॉलिसी लेते वक्त बीमारी छुपाने पर रकम अदा करने से इनकार कर दिया था। पॉलिसी होल्डर्स ने स्टेट लाइफ के इस फैसले के खिलाफ वफाकी मोहतसिब से रुजू किया, जिस पर वफाकी मोहतसिब की जानिब से स्टेट लाइफ को पॉलिसी होल्डर्स खानदानों को पूरी रकम अदा करने की हिदायत की गई। सदर मुमलिकत ने कहा कि हकायक की रोशनी में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस बद इंतजामी की मुर्तकिब हुई। इस ज़िमन में मजीद कहा गया कि मोहतसिब के फैसले के खिलाफ स्टेट लाइफ की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है और इस हवाले से 30 दिन में फैसले पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश की जाए। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने ग्वादर के मेहनत कश माहीगीरों के इंतहाई जायज़ मुतालबात का नोटिस लेते हुए इस हवाले से इक़दामात करने के लिए सख्त एक्शन लेने की यकीन दहानी कराई है। इसी हवाले से नवीद अज़हर ने पैकेज तैयार किया, आपके साथ शेयर करते हैं। बलूचिस्तान के साहली शहर ग्वादर में पोर्ट रोड पर माहीगीरों का धरना 15 नवंबर से जारी है। धरने में मुकामी माहीगीरों, खवातीन और बच्चों समेत सैकड़ों लोग शरीक हैं। धरने के दौरान खवातीन और मर्दों की रैलियां भी निकाली गईं, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। ग्वादर को हक दो तहरीक के मुतालबात में बलूचिस्तान की समंदरी हदूद में ट्रालरों के जरिए माहीगीरों पर पाबंदी बड़ा मुतालबा है। बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत ने तहरीक के 4 मुतालबात पर अमल दरामद का नोटिफिकेशन जारी कर रखा है। ताहम मौलाना हदायत और उनके साथियों का मौकफ है कि अमली इकदाम तक एहतजाज जारी रहेगा। वजीर आज़म इमरान खान ने गैर कानूनी मछली पकड़ने वाले ट्रालरों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की हदायत की है। अपने ट्वीट में वजीर आज़म ने ग्वादर के माहीगीरों के जायज मुतालबात का नोटिस लेते हुए कहा है कि वो इस मामले पर वजीर आला बलोचिस्तान से भी बात करेंगे। वजीर आज़म ने कहा कि ट्रॉलर्स के जरिए मछली के गैर कानूनी शिकार पर सख्त कार्रवाई करेंगे। ग्वादर तहरीक के रहनुमा मौलाना हदायतुर रहमान ने वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से माहीगीरों के जायज मुतालबात के नोटिस लेने का खैर मकदम किया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हक दो तहरीक के मुतालबात पर अमल होगा। मामले पर अपने ट्वीट में मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि वजीर आज़म इमरान खान हमेशा गरीब के साथ खड़े होते हैं। उन्होंने नवंबर के आखिरी हफ्ते में वजारत दाखिला को हदायत दी थी कि ग्वादर से मुंसलिक गैर कानूनी माहीगीरों के मसले को फौरी हल करने के लिए इकदाम किए जाएं। अगले 3 दिन में इस कमेटी की सिफारिशात जमा होंगी और इस मसले को हल किया जाएगा। किसी सूरत गरीब का इस्तेहसाल नहीं होने दिया जाएगा। इस कमेटी में तमाम इदारों के लोग शामिल हैं ताकि एक दूर रस और जामे हल निकाला जाए। वजीर आला बलोचिस्तान मीर कद्दूस वजिंजो ने वजीर आज़म की जानिब से ग्वादर तहरीक के मुतालबात का नोटिस लेने का खैर मकदम करते हुए कहा कि ग्वादर तहरीक के मुतालबात इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी है और पहले से ही मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि गैर जरूरी चेक पोस्ट को खत्म कर दिया गया है, जबकि मुतलका सूबाई महकमे गैर कानूनी माहीगीरी और ट्रॉलिंग की रोकथाम यकीनी बना रहे हैं। महकमे और इदारे गैर कानूनी ट्रॉलिंग के सद्देबाब के लिए मजीद मरबूत और मौसर इकदाम करेंगे। मोहम्मद नवीद अज़हर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वफाकी वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान बलोचिस्तान के मसाइल का हल तरजीही बुनियाद पर चाहते हैं। लाहौर में वज़ीर ममलिकत फ़र्रुख हबीब की हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि वज़ीर आज़म ने गवादर के मेहनत कश माहीगीरों के मुतालबात का नोटिस दिया है और गैर कानूनी माहीगीरी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनूबी बलोचिस्तान के लिए मुल्की तारीख का बड़ा तरक्याती पैकेज दिया है। एक सवाल के जवाब में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि PTI हुकूमत इलेक्शन कमीशन को मजबूत बनाना चाहती है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात फ़र्रुख हबीब ने कहा कि हम चाहते हैं तमाम सियासी जमातों के मालियाती खाते सबके सामने हों। उन्होंने कहा कि PTI पार्टी फंड के हवाले से इलेक्शन कमीशन को तफसीलात फराहम की जा चुकी हैं, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पार्टी फंड की तफसीलात अभी तक इलेक्शन कमीशन को जमा नहीं कराई। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन तमाम पार्टीज के अकाउंट्स की ऑडिट तफसीलात जल्द अवाम के सामने लाए। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर ने कहा है कि सिंध के तमाम शहरों को हुकूक मिलना चाहिए। सिंध के अवाम के लिए तहरीक चलाएंगे और आइनी हक इस्तेमाल करते हुए सेनेट और असेंबली समेत हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। कराची में PTI ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि सिंध में मकामी हुकूमत के निज़ाम की दुरुस्तगी और बाइख्तियार बलदियाती निज़ाम चाहते हैं। असद उमर ने कहा कि मसाइल के हल के लिए सिंध हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार हैं।
آئین کے تحت جو اختیارات کراچی شہر کو حاصل ہیں وہ اسے ملنے چاہیے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی نے کہا کہ صوبوں کو اختیار دینے سے مسائل حل نہیں ہوتے، مقامی حکومتوں کا نظام مکمل طور پر با اختیار ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے خیبر پختونخوا کو با اختیار بلدیاتی نظام دیا، جبکہ اسلام آباد اور پنجاب میں با اختیار مقامی حکومتوں کا نظام دینے جا رہے ہیں۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب نے کہا ہے کہ پاکستان کی برآمدات تیزی سے بڑھ رہی ہیں، ہم سب کو ملک کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فاروق حبیب نے کہا کہ FBR میں اصلاحات لا رہے ہیں۔ ادارے نے گزشتہ سال 250 ارب روپے کے ری فنڈ جاری کیے۔ فاروق حبیب نے کہا کہ ہماری حکومت ٹیکس ٹو GDP کی شرح کو بڑھانے کے لیے کوشاں ہے۔ گزشتہ سال کی نسبت اس سال زیادہ ٹیکس جمع کیا گیا۔ وزیر مملکت نے کہا کہ سابقہ حکومتوں نے زرعی شعبے پر کوئی توجہ نہیں دی، جبکہ موجودہ حکومت کی کسان دوست پالیسیوں کی بدولت گندم، چاول اور گنے کی فصلوں کی ریکارڈ پیداوار ہوئی، جبکہ ٹیکسٹائل کے شعبے کی کارکردگی بھی اچھی رہی۔ فاروق حبیب نے کہا کہ اسٹیٹ بینک قرض فراہمی میں سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 3000 ارب روپے قرضوں کی ادائیگی میں چلے جاتے ہیں۔ معاون خصوصی سیاسی روابط ڈاکٹر شہباز گل نے کہا ہے کہ مریم اورنگزیب پروپیگنڈے کی بجائے آقاؤں کی کرپشن کا حساب دیں۔ بتائیں کہ اربوں کی کرپشن کر کے ملک کو بے یار و مددگار چھوڑنے والے سمدھی وزیر خزانہ کب واپس آ رہے ہیں۔ مریم اورنگزیب کے بیان پر رد عمل میں انہوں نے کہا کہ پاکستانی سیاست میں شریف خاندان اور ان کے درباریوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ شہباز شریف کا ہر منصوبہ کرپشن اور کک بیکس کے لیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ دھیلے کی کرپشن کی گردان والے FIA کو 25 ارب کے جواب دے دیں۔ 3 دہائیوں تک ملک پر مسلط رہنے والے چور ڈاکوؤں کا بویا کاٹ رہے ہیں۔ معاون خصوصی شہباز گل نے کہا کہ عوام کا تحریک انصاف کی حکومت پر مکمل اعتماد ہے۔ وزیر صحت و خزانہ خیبر پختونخوا تیمور سلیم جھگڑا نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام صوبے کی بہتری کے لیے فیصلے کرتے ہیں۔ صوبے کے عوام نے سب سے پہلے PTI کو مینڈیٹ دیا ہے۔ پشاور میں صوبائی وزیر اعلیٰ تعلیم کامران بنگش اور غضنفر بلور کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کامران خان بنگش نے کہا کہ صوبے کے عوام وزیر اعظم کی پالیسیوں پر مکمل اعتماد کرتے ہیں۔ صوبائی وزیر صحت و خزانہ تیمور سلیم جھگڑا نے کہا کہ غضنفر بلور کی شمولیت سے پارٹی مزید مضبوط ہوگی۔ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے غضنفر بلور نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت ان کا انفرادی فیصلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا ہے۔ کورونا کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت متاثر ہوئی ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں یونیورسل ہیلتھ کوریج کا دن آج منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد صحت کی سہولیات کی بلا تخصیص فراہمی کے بارے میں شعور اجاگر کرنا ہے۔ پاکستان میں یونیورسل ہیلتھ کوریج کو یقینی بنانے کے لیے حکومت اقدامات کے حوالے سے رپورٹ کر رہی ہیں صدف افضل۔ یونیورسل ہیلتھ کوریج سے مراد مالی مشکلات کے بغیر دنیا بھر کے لوگوں کو صحت کی معیاری سہولیات کی فراہمی ہے، جو کہ احتیاط، علاج، بحالی اور دیکھ بھال پر مشتمل ہے۔ اقوام متحدہ کے تمام ممالک بشمول پاکستان نے مستحکم ترقی کے اہداف میں یہ عزم کر رکھا ہے کہ 2030 تک یونیورسل ہیلتھ کوریج کے ہدف کو ممکن بنایا جائے گا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے عوام کے لیے صحت کارڈ کا اجرا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ قومی صحت کارڈ کا دائرہ کار پورے ملک میں پھیلایا گیا ہے۔ ہیلتھ انشورنس شروع کی، پہلے تو سمجھ ہی کسی کو نہیں آئی، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کو جو کمزور طبقہ تھا اس کو سمجھ آنا شروع ہوا اس کا، اور بہت بڑی اچیومنٹ تھی پختونخوا کی۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پنجاب میں 1 جنوری سے وہاں ہیلتھ کارڈ کی ڈسٹریبیوشن، اور 3 مہینے میں سارے پنجاب میں لوگوں کو ہیلتھ انشورنس ملے گی۔ کورونا وائرس نے پوری دنیا کو بری طرح متاثر کیا، مگر پاکستان میں حکومتی فیصلوں اور اقدامات کی بدولت عالمی وبا پر قابو پایا گیا، جبکہ ملک بھر میں عوام کے لیے فری ویکسینیشن کا عمل بھی بھرپور انداز سے جاری ہے۔ اسی طرح ملک کو پولیو سے مکمل طور پر پاک کرنے کے لیے بھی حکومت نے اہم اقدامات کیے۔ افغانستان میں بھی یہ مکمل طور پر اس کا خاتمہ نہیں ہوا، تو یہ جڑ کے مل کے اکٹھے یہ کیمپین کی جا رہی ہے۔ ہمیں پاکستان کے عوام سے، لوگوں سے آپ کی کوآپریشن، آپ کی مدد، آپ کی شمولیت چاہیے۔ صحت اور تندرستی جیسے اہم شعبے کے لیے ہسپتالوں اور طب سے وابستہ افراد کو بھی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانا بے حد ضروری ہے۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور ناظرین، 19 دسمبر کو پاکستان کی میزبانی میں ہونے والی اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل کے خصوصی اجلاس میں افغانستان میں انسانی المیت سے نمٹنے اور مستقبل کے حوالے سے لاہے عمل پر بات ہوگی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ افغانستان میں فوری معاشی بحالی سب سے اہم معاملہ ہے۔ نمرہ سہیل سے تفصیل جانتے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کنٹرول کے بعد نئے چیلنجز۔ پاکستان افغانستان میں انسانی المیوں کو روکنے کے لیے متحرک۔
साल के बाद एक बार फिर पाकिस्तान में अफगानिस्तान पर OIC वज़ीर ख़ारजा का गैर मामूली इजलास। दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर। पाकिस्तान ने दहाइयों कबल दुनिया को बता दिया था कि अफगान मसले का कोई फौजी हल नहीं। आज पाकिस्तान दुनिया को बता रहा है कि नाजुक मरहले पर आलमी बरादरी अफगान अवाम को तन्हा ना छोड़े। ये पाकिस्तान ने तो गैर मामूली तरीक़े से मदद करने की कोशिश की है अफगानिस्तान के अवाम की। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका बड़ा किरदार है और उनकी ये कोशिश है कि तमाम इस्लामी ममालिक में ये उजागर किया जाए कि अफगानिस्तान की मदद करना बहुत ज़रूरी है। इस्लामाबाद में इंतहाई अहमियत का हामिल OIC फॉर अफगानिस्तान और OIC इन पाकिस्तान के हैशटैग तले आलमी इदारों और 57 इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का इजलास अफगान अवाम की मदद के लिए कलील और तवील मुद्दती पॉलिसियाँ वज़ा करने में मददगार साबित होगा। जो लोग हैं वो गुर्बत का इतना निशाना बन गए हैं कि वो शायद फाका कशी वहाँ शुरू हो जाए। तो ये तमाम चीज़ें देखते हुए ये बड़ा ज़रूरी था कि जो मुसलमान ममालिक हैं वो अफ़गानिस्तान के बारे में सोचें और किस तरीक़े से उनकी मदद की जा सकती है इक़्तिसादी लिहाज से। पाकिस्तान का हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि अफ़गानिस्तान में अमन खित्ते में पायदार अमन का रास्ता है। एक बार फिर पाकिस्तान की कोशिशों से इलाकाई इस्तेहकाम पर बात होने जा रही है। यही मुस्तक़बिल का रास्ता है। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमत की जानिब से कारोबार के लिए साजगार माहौल की फराहमी यकीनी बनाने की बदौलत मुनफरिद आइडियाज़ पर मबनी नई कंपनी स्टार्टअप्स की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। राना इफ्तिखार अहमद की रिपोर्ट देखिए। सरमाए की बाआसानी दस्तयाबी के हुकूमती इक़दामात से सिर्फ 2021 में स्टार्टअप्स के शोबे में $30 करोड़ से ज़ायद की सरमायाकारी हुई, जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। हमारे वो स्टार्टअप्स $300 मिलियन की सीड मनी यानी कि अपनी स्टार्टअप्स जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आ चुके हैं, जिनके पास आइडियाज़ थे, जिनके पास सलाहियत मौजूद थी। 2018 में हमें एक्सपोर्ट्स मिली $850 मिलियन पर। पिछले साल हम उसे $2 अरब के ऊपर लेकर गए हैं। इस साल हमारा टारगेट है कि हम उसे $3 अरब से ज़ायद जो है वो IT एक्सपोर्ट्स को लेके जाएंगे। इंक्यूबेशन सेंटर्स का क़याम ई-कॉमर्स और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जैसे जदीद शोबों के फ़रोग में कलीदी किरदार अदा किया है। हमारा नेशनल इंक्यूबेटर सेंटर इस्लामाबाद में, कराची, लाहौर में काम कर रहे हैं। स्टार्टअप्स को वो प्रमोट करते हैं। आइंदा चंद माह के अंदर आपका अपना जो है वो नेशनल इंक्यूबेटर जो है वो फैसलाबाद के अंदर बनने जा रहा है, जो कि स्टार्टअप्स को जो है वो प्रमोट करेगा। उसमें मल्टीनेशनल्स भी आएंगी, जो यहाँ की हमारी अपनी बड़ी कंपनियां हैं उनको भी हम साथ लेके आएंगे। कंपनी रजिस्ट्रेशन का अमल आसान बनाने के लिए की गई जामे इस्लाहात से मुल्क में रजिस्टर्ड कंपनियों की तादाद 1,56,000 से तजावज़ कर गई है, जो 3 साल पहले 92,000 थी। 3 साल में नई रजिस्टर्ड कंपनियों की तादाद में 70% इजाफा कारोबार के लिए साजगार माहौल और सरमायाकारों का हुकूमती पॉलिसियों पर पुख्ता एतमाद का मुंह बोलता सबूत है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब में रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस शुरू करने के लिए अमली इकदामात का आगाज कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ने एयर रेस्क्यू सर्विस के मंसूबे को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करते हुए 12 अरब रुपए मुख्तस करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस सर्विस के जरिए पंजाब के दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों तक रसाई मुमकिन होगी और मरीजों को रेस्क्यू की तेज तरीन सहूलत मैसर आएगी। गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर अहमद ने कहा है कि मुल्क की तरक्की में अक़लियतों का किरदार इंतहाई अहम है। आइन के तहत तमाम अक़लियतों को अक़ीदे और मज़हब और राय के इजहार का हक हासिल है। कल्लात में दीवान हरीचंद की क़यादत में हिंदू पंचायत के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर बलूचिस्तान ने कहा कि पूरे खित्ते को अमन व आश्ती का गहवारा बनाने के लिए मजहबी रवादारी और हम आहंगी को फ़रोग़ देना अशद ज़रूरी है।
अभी आपको बताएं कि अफगान हुकूमत के तर्जुमान और नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि हम दूसरे मुल्कों के मामलात में अदम मुदाखलत की पॉलिसी पर गामज़न हैं। अफगान सरजमीन किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अरब न्यूज़ से इंटरव्यू में उनका कहना था कि TTP पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने TTP को मशवरा दिया कि वो पाकिस्तान में अमन व इस्तेहकाम पर तवज्जो दे। उन्होंने इस्लामी ताउन तंजीम के रुकन मुल्कों पर जोर दिया कि वो अबूरी हुकूमत के साथ ताउन करें और अफगान अवाम के मसाइल के हल में किरदार अदा करें। अमेरिका की रियासत केंटकी समेत 5 रियासतों में तूफानी बगोलों ने तबाही मचा दी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक 100 अफराद की हलाकत का खदशा है, जबकि सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं। ये बगोला सैकड़ों इमारतों, गाड़ियों और दरख्तों को तिनकों की तरह उड़ा कर ले गया। अमरीकी महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता शब 5 रियासतों में 19 बगोले रिकॉर्ड किए गए, जिन्होंने वसी पैमाने पर अमलाक और इंसानी जिंदगियों को नुकसान पहुंचाया। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा है कि हुकूमत बगोलों से तबाह होने वाले इलाकों में मदद के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगी। उन्होंने कहा कि ये बगोले अमरीकी तारीख में सबसे बड़े थे। अमरीकी सदर ने एक वफाकी हंगामी एलामिये पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत सबसे ज्यादा मुतासर होने वाली रियासत केंटकी के लिए फंड्स जारी किए गए हैं। अमेरिका के महकमा खजाना ने कानून तैयार किया है, जिसके तहत लोगों को अमेरिका से अफगानिस्तान रकूम भेजने की इजाजत होगी। इस कानून के तहत अफगानिस्तान रकूम भेजने वाले अफराद से पाबंदी हटा ली गई है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक बैनुल-अक़वामी इमदादी इदारों ने अफगानिस्तान में खुराक और सेहत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारों को फंड्स मुंतकिल करने का फैसला किया है। आलमी बैंक के मुताबिक अफगान तामीर नौ ट्रस्ट फंड को अतिया फ्राहम करने वाले ममालिक ने अफगानिस्तान के लिए 28 करोड़ डॉलर जारी करने पर इत्तेफाक किया है। ये रकम बराह रास्त अफगान अबूरी हुकूमत को फ्राहम की करने की बजाय अफगानिस्तान में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और यूनिसेफ को मुंतकिल की जाएगी। कुछ दीगर अहम खबरें शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। ये शाहरा है ताकत की, ये शाहरा है इक्तिदार की, पार्लिमान की, अदलो इंसाफ की। यहाँ होते हैं मेरी और आपकी किस्मत के फैसले। कभी तनकीद बराए तनकीद, तो कभी तनकीद बराए तामीर। कल के दुश्मन आज के दोस्त, कल हो हलीफ तो आज हरीफ। अब होगी हर फैसले पर नजर, हर जोड़ तोड़ पर बात, हर कानून साजी पर बहस, मुस्तकबिल पर सवालात, बेबाक और गैर जानिबदाराना। मैं मोना आलम लाऊंगी आपके पते की बात, स्ट्रेट फ्रॉम शाहराए दस्तूर। अनासीन अस्करी माहिरीन का कहना है कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर के हादसे में हलाकत से भारतीय फौज में नस्म ज़ब्त और अस्करी तैयारियों की कमी बेनकाब हुई है। अस्करी माहिरीन का कहना है कि यह हादसा भारतीय फौज में जिद्दत के लिए एक बड़ा धचका है, जो अब तक देर तक एक ख्वाब ही रहेगा। बीजिंग के एक अस्करी माहिर ने चीनी रोजनामे ग्लोबल टाइम्स को बताया कि भारतीय फौज बहुत ज्यादा अक़साम के हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल करती है और ये सूरत हाल फौजी नकलो हमल और देखभाल में मसाइल पैदा करती है। चीन के एक और अस्करी माहिर ने ग्लोबल टाइम्स को बताया कि भारत में एक ढीला ढाला और गैर मुनज़्ज़म फौजी कल्चर है और भारतीय फौजी अक्सर काम के मयारी तरीक़ाकार और कवायद व ज़वाबित पर अमल नहीं करते। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर का हालिया हादसा भी भारत की फौज की अस्करी तैयारी में नकाइस की निशानदही करता है। भारत में मरकजी हुकूमत की तरफ से मुतनाज़ा ज़रई कवानीन वापस लिए जाने के बाद हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के किसान दिल्ली से अपने घरों को रवाना हो गए। ज़रई कवानीन की वापसी की खुशी में किसान ढोल की थाप पर गाते और नाचते वापस हो रहे हैं। दिल्ली से वापस आने वाले किसानों के लिए जगह जगह मिठाई और दूध के लंगर लगे हुए हैं। इस दौरान खवातीन भी गीत गाकर किसानों का इस्तकबाल कर रही हैं। घरों को लौटने वाले किसानों के ट्रैक्टरों में बड़े बड़े स्पीकर लगाए गए हैं, जिन पर गीत गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
पंजाब के वज़ीर आला चरणजीत सिंह ने कहा है कि रियासती हुकूमत दिल्ली की सरहद से लौटने पर किसानों का इस्तकबाल करेगी, जहां उन्होंने तीनों ज़रई कवानीन के खिलाफ साल भर एहतजाजी मुजाहरा किया था। कोविड-19 से मुतालिक अपडेट ये है कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना वबा से मुतासरा 7 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि मजीद 288 अफराद वबा से मुतासर हुए हैं। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 0.62% रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता 24 घंटे में 46,006 टेस्ट किए गए। कोरोना से बचाव के हवाले से इक़दाम और वैक्सीनेशन का जायजा लेने के लिए NCOC और इस्लामाबाद इंतजामिया का मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारने का सिलसिला जारी है। वफाकी वजारत इक्तिसादी उमूर और जर्मन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी ने नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन के ताउन से पाकिस्तान के समाजी और इक्तिसादी शोबों में सिनफी मसावात के मौजू पर वेबिनार का इनेकाद किया। वेबिनार का मकसद हुनर की तरक्की के जरिए लेबर मार्केट में ख़वातीन की शमूलियत पर जोर देना और ख़वातीन को लेबर मार्केट तक रसाई और इसमें सबकत हासिल करने के लिए फ़नी तालीम और पेशा वाराना तरबियत की अहमियत के बारे में आगाह करना था। वेबिनार में माहिरीन ने सिनफी तवाज़ुन, मसावात, बेहतर रसाई और महारत की तरबियत के मेयार के साथ साथ हकीकी ज़िंदगी में दरपेश चैलेंजेस पर तवज्जो देने की ज़रूरत पर जोर दिया। मजहबी सयाहत के फ़रोग़ के सिलसिले में भारत से हिंदू यात्रियों का एक वफ़द सक्खर के तारीखी मंदिर साधु बेला पहुँचा। मंदिर आमद पर वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस हवाले से देखिए सक्खर से मलिक इमरान शाहिद की ये रिपोर्ट। भारत से 137 यात्रियों पर मुश्तमिल वफ़द सेंट युडिस्टर लाल की क़यादत में सक्खर में तारीखी मंदिर साधु बेला पहुंचा, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वफ़द के अरकान ने हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की मेहमान नवाजी पर मुसर्रत का इजहार किया। लोग बोलते थे पाकिस्तान पाकिस्तान जो हवा बना रखा था, अरे यहाँ तो स्वर्ग है ज़मीन पर सीधा। आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की इज्जत, हम जब से आए हैं तब से जहाँ पैर रखा है हम तो देख के दंग रह गए। कितने मीठे मीठे अच्छे अच्छे लोग हो आप लोग। इतना प्यार यहाँ हमें मिला है, यहाँ की आवाम का प्यार, यहाँ के जो सरकारी मिशनरी है उन्होंने इतना जो सपोर्ट किया है हमको, हम हमेशा उनके आभारी रहेंगे। पाकिस्तान आके बहुत ही महफूज महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ की धरती में, यहाँ की मिट्टी में जो मोहब्बत है, जो उपज में खुशबू है, जिसको हम एक ऑरा भी बोलते हैं, अगर किसी से भी हम मिलते हैं तो उसका ऑरा ही हमको अपने गले लगा देता है। बहुत अच्छी सब आवाम है, सबसे अच्छा प्यार मिला है, मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ यहाँ आके। भारतीय यात्रियों के जज्बात इस बात की गवाही है कि पाकिस्तान दुनिया का एक इंतहाई पुरअमन मुल्क है। मलिक इमरान शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, सक्खर। और नाजरीन, सर्द मौसम के साथ ही कोयटा में कहवे का इस्तेमाल बेहद बढ़ जाता है। कोयटा में कहवा किस तरह तैयार किया जाता है और लोग इसको क्यों पसंद करते हैं, बताएंगे कोयटा से शहबाज खान काकड़। सर्द मौसम और कहवा चाय, जी हाँ, ये कोयटा ही है, जहाँ घरों, कारोबारी मराकज़, दफातर और चाय खानों में लोग कहवा चाय का बेहद इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे से जो होता है कहवा चाहिए, बलूचिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ख़ासकर सर्दियों के मौसम में। कोयटा के जो आवाम है वो ये चाय बहुत शौक से पीते हैं। सर्दी में सबसे ज़्यादा पीता है, और जो गर्मी में होता है काला चाय, सलेमानी चाय ज़्यादा आदमी पसंद करता है। अपने अपने मिजाज और जायके के मुताबिक कुछ लोग लीमू, कोई अदरक तो कोई पुदीना के साथ कहवा चाय इंजॉय कर रहा है। कोयटा के शहरियों का कहवा पीने का भी अपना ही मुनफरिद अंदाज है। कहवे के कप में चीनी शामिल करने के बजाय गुड़ और खुश्क मेवाजात को अलहदा चाय के साथ इस्तेमाल किया जाता है। शहबाज खान काकड़, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। इसके साथ ही कैबिनेट आर का वक्त खत्म हुआ। कैबिनेट आर की पूरी टीम और सलमा कौसर समेत रिजवान अली अहमद को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के साथ रहिए।